तृणमूल कांग्रेस के आईएनटीटीयूसी ट्रेड यूनियन के ओर से धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल चंद्र राय के समर्थन में पश्चिम बंगाल प्रदेश के आईएनटीटीयूसी सभापति ऋतुव्रत बनर्जी एवं जलपाईगुड़ी जिला सभापति राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर के नेतृत्व में बानार प्रखंड के कई चाय बागानों में कार्य करते हुए महिला श्रमिक एवं पुरुष श्रमिकों के बीच मेला के दौरान जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान करबला चाय बागान में प्रदेश के श्रमिक संगठन के सभापति ऋतुव्रत बनर्जी ने श्रमिकों से बातचीत करते हुए कहा कि एंडोयल चाय बागान कंपनी केंद्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन यहां पिछले 6 महीने से चाय श्रमिकों का पीएफ ग्रेजुएटी का पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो केंद्र सरकार देखिए किस प्रकार से चाय श्रमिकों का उत्थान कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पीएफ डिपार्टमेंट भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। उन्होंने केंद्र के सत्तारूढ़ दल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार के बजट में चाय श्रमिकों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ पास किया था, लेकिन वह 1000 करोड़ जमीन खा गई या आसमान निगल गई, आज तक चाय श्रमिकों को पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि चाय बागान के उत्थान के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्य कर रही हैं। उन्होंने क्रेज हाउस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सभी चाय बागानों में कर रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान आज स्थानीय तृणमूल श्रमिक संगठन के नेता धन बहादुर छेत्री, तबारक अली एवं आईएनटीटीयूसी के बानाट ब्लॉक सभापति रंजीत लाकड़ा सहित कई तृणमूल के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। देखिए ऋतुव्रत बनर्जी ने आगे क्या कहा। অন্য কে কি ডিমান্ড করছে বলতে পারবো না। আইএনটিটিউসি গতবারও 20% বোনাসের দাবি জানিয়েছে, আমরা এবারও 20% বোনাসেরই দাবি জানাবো। তো উম্মিদ করা যাবে কি এইবার 20% বোনাস পাবে? এখন এটা মিটিং না হলে তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের আইএনটিটিউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দাবি হচ্ছে 20% বোনাস। আর আমরা এর মধ্যেই আমাদের নেতৃত্বদের নিয়ে মিটিং করে, আপনারা জানেন এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাবেশ করে যাওয়ার পর ধারাবাহিক কর্মসূচি হয়েছে, বাগানে বাগানে গেট মিটিং হয়েছে, তারপর গোটা ডিসেম্বর মাস জুড়ে পদযাত্রা হয়েছে, দুটো জেলার জলপাইগুড়িতে মিলিত হয়েছে, এগুলো হয়েছে আপনারা জানেন। এখন তারপর আবার 2 ধাপে ধর্ণা হয়েছিল জনবাল্লা বাড়ির সামনে সহ অন্যান্য জায়গায়। আবার আমরা আমাদের কর্মসূচি ভোট 5 তারিখ হয়ে যাবে, সেপ্টেম্বর মাসের 15 তারিখের মধ্যে আবার লাগাতার কর্মসূচি আইএনটিটিউসি ঘোষণা করবে। এবার ধূপগুড়ি বিধানসভাতে কত চুনৌতি আছে আপনাদের? ধূপগুড়ি বিধানসভায় মানুষের সমর্থন সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘাসের ওপর জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন। ওই যে 1000 ধরুন এই চা বাগানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, শুনলেন তো শ্রমিকরা বলল যে সেখানে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থার অধীন, সেখানে বলছে 6 মাস ধরে হচ্ছে পিএফ জমা হচ্ছে না। তাহলে এর দায় কে নেবে? এর দায় কি রাজ্য সরকার নেবে না প্রভিডেন্ট ফান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ? বাগানের মালিকানা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থার। তারা হচ্ছে শ্রমিকের বক্তব্য যে তারা 6 মাস ধরে হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড দিচ্ছেন না। তো আমরা স্বাভাবিকভাবে এটা তো একটা জলজান্ত উদাহরণ। এটা তো অন্য কারো, এটা ব্যক্তি মালিকের বাগান নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটা সংস্থার বাগান। তাহলে সেখানে যদি প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না হয় তাহলে কে হচ্ছে দায় নেবেন? এই হচ্ছে বিজেপির স্বরূপ, মানুষের কাছে উন্মোচিত। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বাগানেও ধন বাহাদুর দা আছেন আমাদের এখানকার লিডার, উনি আমাদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। রাজেশ সহ আমাদের অন্যান্য সমস্ত নেতৃত্বরা এখানে আছে, নির্জল দে আছে আমাদের দার্জিলিংয়ের। মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই বাগানে প্রথমবার তৃণমূলকে পঞ্চায়েতে জিতিয়েছেন। বলছে আমার কথা নয়, আপনি শুনেছেন, মানুষ বলছেন। তো সেই এবার পঞ্চায়েত কাজ করবে, মানুষের পঞ্চায়েত, যে কথা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ধারাবাহিকতা নিয়েই ধূপগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়যুক্ত হবে। तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने चाय श्रमिकों से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए यह विशेष
বলছে কি আমাদের চা বাগান একটু খারাপ আছে কিন্তু এই বাগানটা এন্ট্রি ইউলের কোম্পানি। हमने तो ये बागान में कमाई की, हमने के तो माने रोज रोज चलाते, घर दुरा चलाते, ये बागान कर भाषा है हमने के तो कोनो ना के बागान कर भाषा है। अब बागान यदि ईशान हो जाए तो हम कहाँ जा। ওনারা বলছেন বাগানের পরিস্থিতি খুব খারাপ। अब तो हम इनके तो कोनो ठीक जगह नहीं रहली, हम तो बागान का बागान में रहली में कि हम बागान नहीं में रह जाइला। देखिए इसलिए ये जो बागान के अंदर आप लोगों का आज जो चुनाव है, हम लोगों का यहाँ धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, ममता बनर्जी का उम्मीदवार, अभिषेक बनर्जी का उम्मीदवार, निर्मल जी को यहाँ उनका तस्वीर है। ये हम लोग ये बागान के क्षेत्र में जो हुआ है, जब यहाँ पर बगल वाले जिला में अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री तो आके बोले थे कि 700 बंद बागान डनकन का सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगा। घोषणा जैसा हो गया, बागान बंद हो गया, एक भी बागान नहीं लिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट बागान खोलने का काम किया। अब ये बागान के लिए 1000 करोड़ रुपया देने का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक पैसा आया नहीं है। दूसरी ओर ये जो बागान के अंदर लोगों का जो ये बागान यूल कंपनी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है। तो हम लोग जरूर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो वायदा है, ये बागान एक सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का बागान है। तो आप जो बोल रहे हैं बागान का ये जो दिक्कत है, गवर्नमेंट कोई उन लोगों का रवैया ऐसा है बागान का हालत सुधारने में कि पीएफ का दिक्कत है। मुझे मालूम नहीं इस बागान में पीएफ का क्या स्थिति है। प्रॉविडेंट 5-6 মাস ধরে এখন বন্ধ আছে। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वही अगर पीएफ जमा नहीं कर रहा है तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये एक जगह से ये लोग ये सब कर रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी, आप लोगों को मालूम है, सरकार बागान के लिए, बागान में जो रहते हैं, बागान के लिए राशन का जो है, जो हेल्थ का है, अभी नया जो एक स्कीम बंगाल गवर्नमेंट ने लिया है, पूरी तराई और डुअर्स का क्षेत्र में बागान चरण में पहला चरण का काम शुरू हो गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और क्रेश ये बनाने का काम शुरू हुआ है। ऐसा कोई बागान नहीं रहेगा पूरी ये क्षेत्र में, अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी जिला में। अभी ये दोनों जिला में पहला चरण, दूसरी चरण में बहुत सारे बागान में हो रहा है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक बागान में इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेगा या क्रेश बनेगा। जो बनेगा उसमें बागान का, अगर मान लीजिए जो क्रेश है, क्रेश के अंदर खास करके क्रेश जो चलाएगा वो जो चाय बागान में रहते हैं उन लोगों से ही, जो माए बहन है उन लोगों का ही सेल्फ हेल्प ग्रुप करके 10 माए बहन को उस क्रेश में लिया जाएगा, वो लोग ही क्रेश चलाएगा। ये মানে पूरा अगर মানে क्या होता है कृष्ण तंबू हां तो नहीं बुझबे से बता पाई तो पूछा तो नहीं बुझबे से कहां पूछा एकदम सही। हाउस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चाय सुंदरी का काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल में पैसा नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी लोगों के लिए और खास करके अभी पूरी माने बंगाल का हर जगह में ये गवर्नमेंट का एकदम डिसीजन है कि ये क्रेश और हेल्थ सेंटर मेनली अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी जिला में ये सब बन रहा है। तो ऐसा कोई बागान नहीं रहेगा, या तो क्रेश होगा जहाँ बच्चा, या हेल्थ सेंटर होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे बन रहा है। सेंटर 10 ठो बेड रहेगा, ये हर बागान में ये हो रहा है। ये 10 ऐसा बाहर से ऐसा दिखने में होगा। ये हेल्थ सेंटर है, 10 ठो मेल माने महिला के लिए 5 ठो बेड, मेल के लिए 5 ठो बेड, ये पूरा बन रहा है हर बागान में। ये अगर ये बनेगा, अगर ये बनेगा, और नहीं तो ये जो है जो तंबू घर जो बोल रहे हैं, ये जो क्रेश जो बन रहा है। तो ऐसा ये बहुत सारे कार्यक्रम, और खास करके ये जो आप पीएफ का मसला बताए, हम लोग अभी ये चुनाव खत्म हो जाने के बाद ही सितंबर महीने का 12-14 तारीख से ये हम लोग चर्चा करके तैयार करेंगे। सितंबर महीने से ही हम लोग ये पीएफ को लेकर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग इस बागान का मालिक है, उसके बावजूद भी पीएफ का दिक्कत है। तो ये सब चीज़ हम लोग उठाएंगे। तो ये जो लड़ाई है, वही तो दुटो ये पहले भी दिसंबर महीने में 2 पदयात्रा हुआ था। एक अलीपुर का संकोच से शुरू हुआ था, यहाँ से एलेनबाड़ी से शुरू हुआ था। दोनों जलपाईगुड़ी में 13 तारीख दिसंबर को पीएफ कमिश्नर के सामने हम लोग गए थे। ये जो दिक्कत है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों का तो पैसा का सवाल नहीं, आपका तो पैसा देना है, मालिक को भी देना है, दोनों पैसा इकट्ठे जमा हो रहा है। हम लोग को सुनने को मिल रहा है, और बार बार हिसाब चाहने से भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रहा है। तो अभी जो चुनाव है,
ये चुनाव बीजेपी की ये सीट में भाजपा ने जीता था और पिछले विधानसभा क्षेत्र में। अभी इस चुनाव में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है निर्मल राय, भारी तादाद से निर्मल जी को हम लोग जिताएंगे, आप लोग जिताएंगे। और ये जो लड़ाई, क्योंकि सिर्फ ये चाय बागान का सवाल नहीं है, पूरी बंगाल का पैमाने में जो 100 दिन का काम करते हैं उन लोगों का पैसा 2021 में चुनाव हार जाने के बाद बीजेपी ने बंद कर दिया, पैसा नहीं दे रहा है। 1,15,000 करोड़ रुपया बंगाल का पैसा, हक का पैसा, अपना पैसा, वो पैसा वो लोग मन मर्जी रुक के रखा है। तो ये सब चीज़ों के खिलाफ ममता बनर्जी, आप लोग को मालूम है, इतना 1,15,000 करोड़ रुपया वो लोग नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद सर लक्खी भंडार में, ये जो लक्खी भंडार का प्रकल्प है, लक्खी भंडार में पिछले 2 साल पूरी बंगाल में जितने माए बहन हैं, इन लोगों को ये लक्खी भंडार देने के लिए ममता बनर्जी का गवर्नमेंट 37,000 करोड़ रुपया खर्चा किया सिर्फ एक स्कीम के लिए। वो लोग 1,15,000 करोड़ अपन लोगों का अटक के रखा है, जो हम लोग का पैसा है, दे नहीं रहा है। उसके बावजूद भी ये चल रहा है। तो अब सब लोग हम लोग को सहयोग चाहिए, वोट चाहिए, हमारा जो कैंडिडेट है। फिर हम लोग ये जो लड़ाई है, खास करके ये सितंबर महीने में ही राजेश जी, हमारा INTTUC का प्रेसिडेंट है राजेश लकड़ा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लीडर हैं। निर्जल दे हमारा दार्जिलिंग समतल जिला का INTTUC का प्रेसिडेंट है। सुजीत छेत्री है, रंजीत लकड़ा है, निरापराध छेत्री है, बहुत बुजुर्ग लीडर धन बहादुर जी यहाँ पर मौजूद है, बाबुन गोप है, और क्या तबारक अली है, सभी जो हमारे लीडर है। हम लोग का तो कारबला में से उ पंचायत हमनी के कोनो सुविधा देवी कई को उ खड़ा हल उके देविला, फिर दूसरा साल आवेला, 5 साल के बाद में और दूसरा आवेला, उका से सुविधा नहीं पले नहीं कान को अभी इस बार पंचायत एखन ठीक है। तो उ पहली बार ये इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ, पहली बार तृणमूल कांग्रेस ने पंचायत जीता है। तो अभी पंचायत आप लोग को तो 3-4-5 महीना नया पंचायत, तो इस बार पंचायत में जरूर, क्योंकि इसके पहले तो तृणमूल का पंचायत नहीं था, आप लोग वोट देकर तृणमूल को जिताए हैं पंचायत में। हम लोग बहुत उम्मीद है कि हमने के कोनो सुविधा हुई जरूर पूरा धन बहादुर जी तो हमारा इस बगान का ही लीडर है। तो जो तो धन बहादुर जी बहुत ही बुजुर्ग लीडर है, बहुत पुराना लीडर है। धन बहादुर जी हमारा केंद्रीय लीडर भी है, 7 बार लगातार जीते हैं। तो उनको भी आप लोग क्या क्या है, धन बहादुर जी पार्ट में नाखे, दूसरा पार्ट में घर आए, फिर भी हम अपन पार्ट में जगह दिले काले के उठो एक शिक्षित आदमी के कई बहुत, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तोरे का जे भी डिमांड है